آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ غیر معینہ مدت تک ہڑتال کریں گے. ہمارے بڑے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہے, ہم اپنے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. 22 لوگ ہیں, 22 تنظیمیں ہیں. جیل جانے کے لیے تیار؟ بالکل تیار. کتنے مطالبات ہیں ہمارے کوئی 25 سے 30 مطالبات. اگر 25 سے 30 میں کل وہ 10 مان جاتے ہیں تو آپ لوگ ریڈی ہو؟ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخری مطالبے تک جو ہے ہماری بات مانی جائے. سیاسی پارٹیوں سے کیا مطالبہ نہیں کرو گے؟ سیاسی پارٹی خود دیکھ رہے ہیں, اپنا لائحہ عمل خود بنائیں. کسی کے پاس جائیں گے تو میرے خیال میں پھر وہ ہمارا سسٹم تقسیم ہو جائے گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کام سیاسی پارٹیوں کا تھا؟ یہ کام ہے حکومت وقت کا. اس وقت بیوروکریسی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اوپینین پہ پارٹیوں کا کردار ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنے اضلاع جو ہے وہ کوئٹہ سٹی سے ڈسکنیکٹ؟ سر, اس وقت ہمارے اطلاعات کے مطابق کم سے کم 8 سے 10 اضلاع ڈسکنیکٹ. ہماری گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں. 8 کروڑ کے مال میں آپ جو ہے صرف سی ایم صاحب نے جو ایک قرارداد منظور کی ہے, یہ 10 لاکھ روپے کی ہے. اب ایک آدمی کا 7 کروڑ روپے جلتا ہے, آپ اس کو صرف 10 لاکھ روپے دیں گے. نہیں, سی ایم صاحب تو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی نہیں پورے بلوچستان میں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو تو 10-15 دنوں میں ہمارے 70 گاڑیاں جلائی گئی. پولیس نے اس کے ساتھ آغا عبید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو. ناظرین, بلوچستان میں بدامنی, مہنگائی, بارڈروں کی بندش کی وجہ سے پورے بلوچستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہو, انجمن تاجران کی 3 تنظیمیں ہو, چیمبر آف کامرس کے صدر کی صدارت میں ان کا ایک فیصلہ آیا. 2 دن قبل ان کا ایک دعادار پریس کانفرنس تھا. 11 تاریخ سے غیر معینہ مدت تک پورے بلوچستان میں شرائع بھی بند ہوگی, شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہوگا. مطالبات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چیمبر آف کامرس کے صدر ایوب مریانی صاحب. سب سے پہلے شکریہ سر وقت دینے کا. باقی اگر ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائے کہ اتنے غصے میں کل نہیں پرسوں آپ لوگ کیوں تھے اور دیر کیوں آیا؟ یہ تو 2 سال پرانی جو مطالبات تھے, اگر مین مطالبات بتا دیں. بڑی مہربانی ہے آغا صاحب آپ کی ٹیم کا, آپ کا چیمبر, ہمارے پاس چیمبر آنے کا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے اچھے صحافی جو ہے اتنا وہ احساس رکھتے ہیں, ہمارے پاس اس کریٹیکل صورتحال میں آئے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ ہم نے کوئی دیر نہیں کی. ہم آج سے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس آن دا ریکارڈ ہے, کیونکہ چیمبر آف کامرس ایک ایسا ادارہ ہے, ہمارے 16,000 ممبرز ہیں. ہم ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت, کامرس منسٹری کے تحت, پھر ہمارے آئین اور قانون جو ہے وہ قومی اسمبلی پاس کرتی ہے. اس کے تحت ہم نے بہت سے لیٹرز لکھے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو, یہاں تک کہ ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں. اب پچھلے دنوں بھی ہم نے لاسٹ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب سے بجٹ پروپوزل کے اس میں کی تھی. وہاں میری اپنی پہلے یہی آواز تھی کہ میں آج ایز اے بلوچستانی آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور بلوچستان کا ایک نمائندہ آیا ہوں. 1 کروڑ 40 یا 1 کروڑ 30 لوگوں کے نمائندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں کہ ہماری گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں, ہمارے سسٹم جو ہے وہ بلاک ہے. 3 منٹ میں میری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ پورا ٹائم ہماری ٹیم کو دے دیں. ہم کوئٹہ چیمبر آف کامرس کا, انجمن تاجران کا, بزنس کمیونٹی کا, ٹرانسپورٹر کا ایک وفد آتے ہیں. صحیح ہے, یہاں ہمیں آپ ٹائم دے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی, آپ کو ہم ایک اپنا پرنسپل سیکرٹری صاحب کو انہوں نے مجھے نمبر دیا کہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گا. پھر ہم پچھلے 1 ہفتے سے رابطے میں رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب کال کرے گا اور سیکرٹری, وفاقی سیکرٹری انٹیریئر کال کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہم پچھلے 1 ہفتے سے انتظار کیا, ہمیں کوئی کال نہیں آئی. اچھا, تو ہم مجبور ہو کے جو ہے ہم نے پریس کانفرنس کی. اچھا, 2 سال میں صوبائی حکومت میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت با اختیار نہیں ہے؟ صوبائی حکومت نے آج تک جو ہے وہ ہماری کسی بات پہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی ہے. ہم نے بارہا وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی ہے. میرے خیال میں اگر اختیار بھی ہو, لیکن مجھے جو ہے ان کے سسٹم میں شاید ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. چیمبر آف کامرس بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے. بالکل, ہمارے اس چیمبر آف کامرس کے نیچے 9 صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہیں ان سے میری طاقت زیادہ ہے. بالکل ہے. 3 قومی اسمبلی کے ممبر جو کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سے میری طاقت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ہم سیمی گورنمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ہماری آواز, ہماری لیٹر جہاں بھی جاتی ہے, حکومت وقت وہاں کا جو بھی سیکرٹری ہوگا, جو بھی ادارہ ہے, وہ پابند ہوگا ہمیں جواب دینے کا. ٹھیک ہے, صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے وہ جواب دینے کے پابند وہ نہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو پھر بھی جب اب اتنی طاقت ہونے کے باوجود جب ہمیں
हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर हम क्या करें, आप बताएं। कितने तंजीमें आपके साथ कल से जो सर आपने इस वक्त हमारे पास कोई 20 से 22 तंजीमें हैं, अच्छा, और हमारे पास कोई 6 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। क्या आप ये नहीं समझते हो कि ये काम सियासी पार्टियों का था जो आज आप कर रहे हैं? ये काम सियासी पार्टियों का तो नहीं है, ये काम है हुकूमत वक्त का, जिनके हाथ में इख्तिदार है, जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट, उनका काम है। ठीक है। सेकंड ओपिनियन पे पार्टियों का किरदार है। ठीक है। हम तो बिजनेसमैन तो एक एलिट क्लास होता है, हम तो हमेशा जो है एक खामोश सिपाही होते हैं। बिल्कुल। मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, मैशत चलाने वाले ताजिर होते हैं। ठीक है। आपकी इतलात के मुताबिक कितने अजला जो है वो क्वेटा सिटी से डिस्कनेक्ट है? सर इस वक्त हमारे इतलात के मुताबिक कम से कम 8 से 10 अजला डिस्कनेक्ट। अच्छा, जहाँ पर कर्फ्यू भी लगा रहता है, जहाँ पे मतलब मामलात भी सही नहीं है, रिट भी बहुत कमजोर है, और हमारी गाड़ियां जलाई जा रही हैं। 8 से 10 अजला जो हमने आपको बताया है, ठीक है। ये सिर्फ न मेरी कोई गाड़ी उसमें ऐसी नहीं है कि वो मेरी जाती इसमें कोई गाड़ी है। ठीक है, हमारा माल बरदार गाड़ियां हैं, जिसमें हमारा माल होगा, मेरी गाड़ी जलाई गई होगी, लेकिन उसमें हमारा माल होगा, वो जो है गाड़ियां किसी और की हैं। अब देखें सर, एक जो सबसे मुश्किल बात है वो ये है कि एक गाड़ी जब जलाई जाती है वो 5 करोड़ रुपए की होती है। ठीक है। और 2 से 3 करोड़ रुपए का उसमें माल होता है, और 8 करोड़ के माल में आप जो है सिर्फ सीएम साहब ने जो एक करारदाद मंजूर की है, या एक जो मंजूर की है, वो सिर्फ 7 लाख या 10 लाख रुपए की है। अब एक आदमी का 7 करोड़ रुपए जलता है, आप उसको सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे? नहीं, सीएम साहब तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं पूरे बलूचिस्तान में। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला, सारे मामला सही चल रहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो तो पिछले 10-15 दिनों में हमारे 70 गाड़ियां जलाई गई। आपका ख्याल ये नहीं है कि मुख्तदर हलकों तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती या उनको पता नहीं है? सर हमारे ये 100% ख्याल है, हमारी ये सारी बातें वफाक के पास नहीं पहुंचती। अच्छा। हाँ, हम एक क्वेटा चैम्बर ने आवाज़ पहुंचाई है, हम डान अखबार में देते हैं, बलूचिस्तान न्यूज़ में देते हैं, जो बिजनेस टाइकॉन है जो हमारा इस्लामाबाद से निकलता है, वहाँ हम देते हैं, वहाँ कभी कभी हमारे साथ रब्ता होता है। अच्छा। कल मेरे साथ एक भारतीय मुल्क के सफारत से मुझे कॉल आई है। अच्छा। हाँ, कि ये क्या मसला है। मैंने कहा मैडम आपको कहाँ से पता चला? कहता है मैंने डॉन अखबार में आपकी आर्टिकल पढ़ी। सफारत खाने तक आपकी बात पहुंचती है, लेकिन फिर भी मुख्तदर हलकों तक नहीं, खामोश है। खामोश। अच्छा, आप लोगों का लायामल क्या होगा? ये गैर मुइना मुद्दत तक जब हड़ताल होगा फिर तो ज़ाहिर मुख्तदर तक भी पहुंचना चाहिए। हमारा लाएअमल ये है कि हम गैर मुन्ना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। अच्छा। हमारे बड़े चार्टर्ड ऑफ डिमांड हमने रखी है। ठीक है। हम अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी हमने बनाई है 22 बंदों की, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, 22 लोग हैं, 22 तंजीमें हैं। ठीक है। हर तंजीम से हमने एक एक आदमी लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवादर हमारे साथ है, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ है, लोरलाइक चैम्बर हमारे साथ है, जोब चैम्बर हमारे साथ है, खारान चैम्बर हमारे साथ है, तुर्बत चैम्बर हमारे साथ है। ठीक है। जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एसोसिएशन है, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, वो हमारे साथ है। कल रात को जब आपके साथ मीटिंग हुई थी जूम पे, मेरे ख्याल से जो मेरी इतलात है, जी। उसमें फाइनल क्या हुआ आप लोगों से? सर कल रात जूम पे मीटिंग भी हुई, आईजी पुलिस साहब जूम पे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब जूम पे थे, और फिजिकली जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, कलेक्टर साहिबान आए हुए थे, एआईजी साहब आए हुआ था, और एफसी से भी कोई कर्नल साहब थे, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। इनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारे कोई 5 मुतालबात तो उसी वक्त मानने के लिए तैयार थे। ठीक है। लेकिन हमारे मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। इसमें असल में मुश्किल ये है, हमारे के जो इस वक्त मुतालबात हैं, इसमें 80% हमारे मुतालबात वफाक से हैं। अच्छा। 20% हमारे जो है वज़ीर आला साहब से, बलूचिस्तान हुकूमत से, और चीफ सेक्रेटरी साहब से हैं 20%। जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसले हैं, बीआरए का बहुत बड़ा एक मसला है, उसके अलावा जो है बॉर्डर्स के मैनेजमेंट के मसले मसाइल हैं, रोड्स के मसले मसाइल हैं, जो सीएम साहब और सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। जो हमारे एसआरओज हैं, सीजीओज हैं, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स हैं, उन सारे के जो मसले हैं वो हमारे वफाक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें चेयरमैन एफबीआर, वजीर ख़जाना। तरीक़ाकार क्या होगा? कल सारी शराइ बंद होगी? कल हम पूरे शराइ बंद करेंगे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन ना था या रिएक्शन ना था? देखिए ताजिर तो एक नरम तबका है, ताजिर तो सियासी वर्कर नहीं रखता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टर तो सियासी वर्कर नहीं रखता है। ठीक है। हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे, अगर हुकूमत वक्त जोर करेगी फिर वो तो उनका काम है। हमारा काम फिर भी हमने अपना नस्बुल ऐन बनाया है, अमन दो अमन दो अमन दो। जेल जाने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार है।
सियासी पार्टियों से क्या मुतालबा नहीं करोगे कि सियासी पार्टियों से हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे। सियासी पार्टी खुद देख रहे हैं, अपना लाइमल खुद बनाए, ठीक है, खुद बनाए, राब्ता कर लें, हमारे साथ राब्ता कर लें। अगर हम किसी के पास जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो हमारा सिस्टम तकसीम हो जाएगा। अच्छा, सियासी पार्टियां मेरे इतलात के मुताबिक के पीएसडीपी की नज़र हो गई है, जो अरकान असम्बली है जो वजूद रखती है बलूचिस्तान असम्बली में वो पार्टियां भी, और जो वजूद नहीं रखती है वो पार्टियां भी, गैर मुंतखब अफराद जो है वो भी पीएसडीपी से मुस्तफ़ीद है। ज़ाहिर है इसीलिए लगता है कि आवाम का आवाज़ उठाने में वो नाकाम रहे। सर देखें, पीएसडीपी अब जून भी आ रहा है, इनका बजट भी है, पीएसडीपी में वाकई ये मसले मसाइल हैं। हम तो पूरी मैं खुद बजाते खुद पीएसडीपी के खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये पीएसडीपी लोकल गवर्नमेंट को दें। ठीक है, सूबाई लोकल गवर्नमेंट कौंसलर का निज़ाम या जो पहले नाजिम सिस्टम था, सूबाई गवर्नमेंट थे, ये उनका काम है। नाली बनाना, रोड बनाना, ट्रांसफार्मर लगाना, ये जो है ये सूबाई हुकूमत के पीएस का या सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। देखें 18वीं तरमीम के तहत हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा 18वीं तरमीम के तहत हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को नहीं गया है। इसका फ़ायदा मखसूस लोगों को गया है, मखसूस उमरा को गया है, मखसूस ख़ानदानों को गया है, जो अरबपति नहीं करबपति बने। कितने मुतालिबात है आप लोगों के? हमारे कोई 25 से 30 मुतालबा। अगर 25 से 30 में कल वो 10 मान जाते हैं तो आप लोग रेडी हो? नहीं, हम कहते हैं कि हमारा आखिरी मुतालबे तक जो है हमारी बात मानी जाए। हमारी मेन मुतालिबा क्या है? सर हमारा मेन मुतालिबा हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना। तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। हमारी गाड़ियां जलाई गई हैं, हमारी गाड़ियों को नुकसान देना पूरा करना। लखपास चेक पोस्ट पे जो 25-30 अरब रुपए का माल जला है उसकी शफाफ इंक्वायरी करना। इस इंक्वायरी में स्पीकर साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम डाला है, लेकिन हमसे नॉमिनेशन नहीं मांगी गई है जीआईटी में। जीआईटी में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ट्रांसपोर्टर्स का, हमारे इदारों का जो है कम से कम 2 नुमाइंदे होने चाहिए। अच्छा जी, ये वैसे आप नहीं समझते हो कि इतना बड़ा स्कैंडल था, ये कैसे हुआ? यहाँ पर कैसे आग जलता है, फायर ब्रिगेड लेट पहुंचता है, फिर बहुत सारे सवालात वहाँ से। देखिए सवालात तो इसमें बहुत बनते हैं। हम ये कहते हैं, हम एक एसआरओ आई थी मेरे ख्याल में 169 है या 11 ऊँचे है, वो मैं एसआरओ नंबर भूल रहा हूँ, 2024 में इम्प्लीमेंट हुई थी। पहले ये होता था अगर कोई गाड़ी 2S केस में पकड़ी जाती है, ठीक है, तो उसको 20% स्टार्ट में 5% रिडेम्पशन फाइन था, फिर 10% हुआ, फिर 20% हुआ, फिर 40% हुआ। ठीक है। अब ये 40% रिडेम्पशन फाइन कभी इन्होंने खत्म करके गाड़ी को बहा के सरकार जब्त करते हैं। ठीक है, जब जब्त करते हैं उसके बाद फिर ऑक्शन किया जाता है। ठीक है। हमने इस एसआरओ को भी डाला कि इस एसआरओ को खत्म किया जाए। ये एसआरओ नारवा सलूक है, क्योंकि देखिए सर मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक बाई का बस है, बस में 40 लोग सफर कर रहे हैं, उसमें एक आदमी के बैग से या एक आदमी के नाकर्दा किसी बोरी से कोई स्मगलिंग का सामान निकलता है। आप पूरी बस को क्यों कन्फिस्केट करते हैं? सही। अब पूरी बस को आपने कन्फिस्केट किया, उसके 4 करोड़ रुपए का बस चला गया। अब एक 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए का सामान के ऊपर आप 4-5 करोड़ रुपए का बस जब्त करते हैं। अब जब्त करने के बाद आप इसको बहा के सरकार जब्त करते हैं। और सबसे बड़ा जो हमने मुतालबा रखा है, ठीक है, बलूचिस्तान में ट्रिब्यूनल की मौजूदगी, और इसके अलावा हमने साथ साथ एक ये भी मुतालबा है कि जब भी कस्टम केस करेगा थर्ड पार्टी जो है वो ट्रिब्यूनल करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी निज़ाम एक ही सिस्टम में है, यानी कलेक्टर साहब, चीफ कलेक्टर साहिबान, मेंबर कस्टम तक जो भी एडजुडिकेशन के फैसले आते हैं, ठीक है, वो फैसले थर्ड पार्टी करे। ठीक है। और थर्ड पार्टी के अलावा देखिए हमारा ट्रिब्यूनल का ऑफिस जो है कराची में है। हमारा एक भाई जिसकी गाड़ी पकड़ी जाती है और वो गाड़ी जो है वो उसकी कीमत टोटल 15 लाख या 20 लाख रुपए है। सही। और वो 15 दफा जब कराची जाएगा, हर दफा उसका अगर 50,000 रुपए खर्चा हो तो 7.5 लाख रुपए तो उसके उधर चले गए। सही। तो हम इतने बड़ा बलूचिस्तान है, हम 150 अरब रुपया जो है हम ड्यूटी टैक्सेस के मद में देते हैं। सही। और उसके बावजूद आप एक ट्रिब्यूनल ऑफिस हम कोयटा में नहीं दे सकते हो, प्राल का ऑफिस कोयटा में नहीं है, ठीक है। और इनकम टैक्स, सेल टैक्स के जो एजुडिकेशन के फैसले वो हम कराची से कराते हैं। सही। आखिर हमें मुल्क नहीं समझा जाता, ना हमें वतन समझा जाता है, ना ये सुबह हम अपना समझते हैं। अगर हम अपना समझते तो ये छोटे छोटे से इदारे हमें कमीशन बनाया गया, वो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन है लखपास का, हमारा नाम मेंशन किया गया है, बाकायदा असेंबली में बात की गई है, लेकिन हमें जो है कोई रिपोर्ट नहीं, हमसे नाम नहीं मांगा गया।
अच्छा, नाम नहीं मांगा। सिर्फ वर्बली बात कही गई, आप लोगों को अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ऑन बोर्ड हमें नहीं लिया गया। अच्छा, जी, जी। आपका ये भी मुतालिबा है कि जी, हमारा ये भी मुतालिबा है जब कि उसमें- जुडिशल कमीशन में जब आपका आपने नाम है तो आप- yes, जब आपने नाम दे दिया है, ठीक है। आपने एक चेंबर ऑफ कॉमर्स की बकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका कहना यह है कि 25 मुतालिबात में से अगर सिंगल मुतालिबा भी रह जाता है तो हमारा गैर मुइना मुद्दत हड़ताल जारी रहेगा। सियासी पार्टियों का उनका कहना यह है कि सियासी पार्टियों से हम नहीं कहेंगे, बल्कि सियासी पार्टियां खुद देखती है कि इस शहर में क्या बदहाली है, उसको हमारी मदद करनी चाहिए।